हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम आदाब एंड आप सबका खैर मकदम है टू द डिजिटल हैंडल्स ऑफ रेडियो चिनार 90.4 एफएम। दोस्तों मैं हूं ज़्यूस और आज फिर से हाजिर हूं आपको किसी खास शख्सियत से मिलाने के लिए। शख्सियत जो कि बारामूला से आती है और एक सोशल एक्टिविस्ट है। आइए मिलकर करते हैं वेलकम इरफान नज़ीर का। इरफान, वेलकम टू रेडियो चिनार 90.4 एफएम। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? It's very nice experience and I like it. God bless you and the pleasure is mutual. Thank you. अच्छा इरफान, you are a social activist. तो social activist जब भी ये term जाहिर होती है, there are a lot of questions people are made of with this term social activist. तो आपकी नज़र में social activism क्या है? Like how you see it as a social activist? Actually, when a person wants to change in a society, तो कोई बुराई देखे वो इसको खत्म करना चाहता है या कोई ऐसा सिस्टम देखे जिसको ये चेंज करना चाहता है और वो इसके लिए निकले तो उसको हम पहल करें उसके लिए, तो वो सोशल एक्टिविज्म में है। सो आई सॉ फ्यू थिंग्स जिसमें मुझे लगा वी शुड कम टुगेदर so to bring a change in these things. So that's why मुझे feel हुआ कि I should work on it. There were many problems which I faced. I will elaborate a few of them. Like in our society, firstly we will see what things need for a betterment of the society. जो सोसाइटियाँ अभी अरूज पर है उनमें दो चीज़ें होती है। First thing is they have a better educational system and they have a good economy. जब ये दो चीजें मिलते हैं it makes a good society. Right, it makes a better society. better society. वहाँ पे crime कम होता है, वहाँ पे ऐसी बुराइयाँ नहीं होती है, social evils नहीं होते, domestic violences नहीं होते when there's a good educational system and good financial system in the society. What I saw here is the first problem I saw is unemployment. I'm talking about our state, Jammu and Kashmir. UT actually. Yeah, UT. Yes. Sorry. The first thing was unemployment. The second thing was lack of quality education and moral education. And the third important was जिसके लिए मैं बहुत अभी worried हूँ, that's laziness. Yes. Indolence in youth. Right. And indolence are killing the societies every day. Unemployment, you know, though it was disturbing here, so small scale industries यहाँ पे पनप नहीं पाई. Right. जिसकी वजह से ये unemployment यहाँ पे. So Irfan, as an individual, how you started और क्या काम करे आपने when it comes to social activism? Yes, actually the first thing is when there's an unemployment in the society, तो लोग बहुत फाइनेंशियली वीक होते हैं. The first thing is जब जख्म लगता है पहले हमें उस पर मरहम करना पड़ता है. बिल्कुल. तो जो भी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, उनके लिए the basic thing is food and clothing, shelter. Right. So I'm working on it. Roti, kabda aur makan. I'm working on it. From last 10-12 years, I'm connected with an organization called IFD in Baramulla, Idare Falahudarin. So we are collecting money like a zakat in our town. And this year it was 1.75 crore rupees. Wow, kudos to those people. We are engaged. We are some 150 members in that organization and we have collected some around 2 crores and we just distribute among those people who don't have avenues of livelihood, like widows is there. ऐसा बंदा है कि जिसको मतलब physical problem है, कुछ जो कमा नहीं पाता है. दो पहली चीजें वो है कि उनको हम कैसे पहले बचाए, उनको हम कहत साली से कैसे बचाए. तो पहला तो काम ये हम करते हैं. इंडिविजुअली आई वॉच माई एरिया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो. सो इंडिविजुअली में वो तो चलता रहता है आईएफडी की तरह से. इंडिविजुअली मैं वो मॉनिटर करता हूँ, उसके ऊपर काम करता हूँ और उनको वो थोड़ा सा रिलीफ देने की कोशिश करता हूँ. दैट्स द बेसिक थिंग. डैमेज हैज बीन डन. जो उसे रिकवर कैसे किया, उसे रिकवर कैसे. फर्स्ट थिंग इज मरहम पट्टी कर दो. उसके बाद जो दूसरी चीज है कि
चलो ये तो सिम्टम है, सोसाइटी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, दिस इज सिम्टम, बट इसको दूर कैसे करें? आई एम वर्किंग ऑन इट, हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ दिस सिस्टम। सो दो चीजें और है, एजुकेशनल सिस्टम, आई एम नॉट टेलिंग दैट यहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम गलत है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है जो आपको कल फिर रोजगार में हेल्प नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, AI इज हियर, कंप्यूटर इज हियर, बट आपके पास ऐसे कोर्सेज नहीं है जो आपको उनमें सक्षम बनाए, जो आपको नीड है व्हेन यू कम आउट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और द कॉलेज, जो आपने वहां पे पढ़ा होता है, लेकिन फिर वो आपको लगता ही नहीं है कहीं पे। जब आप जाते हैं, आज इंटीरियर डिजाइनिंग का जमाना है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, लेकिन यहाँ पे हमारी स्टेट में ऐसे एवेन्यूज है ही नहीं अभी, वैसे ऐसे कोर्सेज है ही नहीं जो आपको इन चीजों में ट्रेन करता, जो कल को ये चीज आप सोसाइटी में यूज करते, पैसे भी कमाते आप सोसाइटी के लिए। So how Irfan is working on? Yeah, and one more thing, and so I just want to add indolence, which I told earlier, that the laziness among the person. I will tell you an interesting story. We say that we have an unemployed youth here. Yes, we have unemployment here, but उसमें हम भी किसी न किसी जगह पे उसके जिम्मेदार हैं। I will tell you a story, sir. There अख मुंजगोर अख च बारामुला चौकस मज कनान Nadir Munj. So I was staying there. I saw a person, an educated person who is not having any livelihood. He's staying idle at home. तो 500 रुपए में राइट टाइम ओलो मुंज, एंड वो खा रहा है, और खाते खाते वो बोल रहा है कि भाई काम नहीं है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। आई टोल्ड हिम कि जिससे आपने ये लाया, ही इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश, एंड ही इज अर्निंग 2 लाख रुपीज, तो तुम भी स्टार्ट कर सकते। क्या आप वो, इसमें शर्माना क्या हो, इसमें शर्माना क्या? सो आई एम इन द काउंसलिंग, मैं काउंसलिंग करता रहता हूँ इन बच्चों की, भाई ठीक है, यू हैड ए PG, बट दैट डजंट मैटर कि आपकी डिग्री आपके ईगो को नहीं, ईगो नहीं बनता। दैट्स अ प्रॉब्लम दैट जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होता है, देयर डिग्रीज आर द हर्डल्स। वो उनकी वो डिग्री बन गई कि भाई हम ये काम नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। डिग्री करी है तो मैं ये काम नहीं कर सकता। देखिए, आप अपनी डिग्री को हर्डल मत बनाइए। आई विल गिव एन एग्जांपल। मेरा एक दोस्त था जिसने मास्टर्स किया था देहरादून से, मास्टर इन कॉमर्स। वो वहां से आया, उसने बारामूला चौक में एक गाड़ी लाई, उसको वो कार्ट बनाया पीछे से, और वहां पे फ्राई फिश बेचने लगा। इनिशियली ही वाज अर्निंग सम 20-30,000 रुपीज, और काम इतना बढ़ गया उसका, मतलब ही हैज नाउ टर्नओवर ऑफ सम 10 लाख रुपीज फॉर अ मंथ। Yeah, DDF is a big chain of now the street food in Baramulla, daily diet foods, and my friend, and he was succeeded, and this time he has around 40 employees, and he is giving livelihood to 40 employees right now, 40 households, 40 families, and that's how it goes. That's how it goes. Degree should not be hurdle in your, और शर्माओ मत, शर्माओ किससे? आज केमिस्ट छुतुई मंशा, मुझे आप ये बोलो, आप किससे मत? अगर आपके पास पैसा नहीं हो तो कोई आपको इज्जत नहीं करेगा, आपके माँ बाप भी आपको घर में इज्जत नहीं करेंगे, और डिग्री के हिसाब से कैपेबिलिटीज जो है मार्क नहीं होती। देखिए, आपने डिग्री की है, देखिए सबसे पहली बात है कि 10th 12th के बाद ही छानी हो जाती है। जो सबसे काबिल होते दे गो टू MBBS, इंजीनियरिंग, रेस्ट ऑफ द पीपल they go for different sectors. देखिए, गवर्नमेंट के पास अभी ऐसे इतने भी एवेन्यूज नहीं है कि they will adopt all. Right. No, yes, they have their limitations. They have their limitations. They can't 10,000 बंदे PG करके निकलते हैं। वो और यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है ना कि मैं परित पद सरकारी नौकरी करना, उससे कहीं ना कहीं हमें बाहर आने की जरूरत है। एक्चुअली ये थोड़ा मतलब यहाँ के लोगों का ना इच बनियामुत फोबिया, लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी में आत्मनमाई लमई वसा। एक्चुअली कॉर्पोरेट जॉब्स आर द बेस्ट जॉब्स। बिजनेस इज फार बेटर देन ऑल द जॉब्स। यस, जहाँ पे एक गेजेटेड ऑफिसर 1 लाख रुपए सैलरी लेता है, वहीं पे एक बिजनेसमैन कैन मेक करोर्स फॉर अ मंथ। मैन, वहां पे हम जाएंगे नहीं। वन फ्रूट सेलर इज मेकिंग 1 लाख 2 रुपीज इन अ मंथ, और वो अपना बॉस खुद होता है। कोई भी सुबह उठ के नहीं बोलता वो चेयर को जल्दी
हर्डल यही आता है कि हम शर्माते हैं। राइट, दैट इज द प्रॉब्लम, Right. दैट इज द कश्मीरी यूथ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो शर्माते ज्यादा। राइट। तो शर्माना छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू माजू बदिक, आई एम ऑन बोल डाल। ओके, सो इरफान, व्हेन इट कम्स टू प्रॉब्लम्स एंड evils we are dealing with the society, so there are domestic violence cases, there are drug abuse cases, तो उन पर कैसे काम होता है, like individually, or you said you work for a community of 150 people, तो कैसे काम करते हो, उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? एक्चुअली प्रेजेंटली आई एम ए मेंबर ऑफ बारामूला वेलफेयर फोरम, जिसमें लगभग 32 मोहल्ले हैं। ओके, 32 मोहल्ले। तो एक दो मोहल्ले को मैं क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ। सो व्हेन देयर इज डोमेस्टिक प्रॉब्लम, सो मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, राइट, जब फाइनेंशियली इंसान वीक होता है, ही इज फ्रस्ट्रेटेड, राइट, यस, सो घर में वो डोमेस्टिक वायलेंस करेगा, बाहर जाके दूसरे लोगों के साथ झगड़ा करेगा। राइट, सो एक चीज मुझे ये मतलब मुझे इसमें एक चीज मैंने ऑब्जर्व की कि फाइनेंशियली जब इंसान स्ट्रेंथिंग नहीं होता है, तो इन चीजों में वह पड़ जाता है। बाकी प्रॉब्लम्स, व्हेन देयर इज ए गुड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ टू ए पर्सन, वो इन चीजों में पड़ता नहीं है। सो बेसिकली इसकी अपने आप को इस तरह से सस्टेनेबल बनाए कि बाकी प्रॉब्लम्स दस्तक ही ना दे। एग्जैक्टली, बाकी प्रॉब्लम वही मैं पहले ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जो ऐसी इकोनॉमी में जहाँ पे पैसों की कमी हो, वहीं पे रॉबरी भी हो जाएगी, वहाँ पे ड्रग एडिक्शन भी हो जाएगा, वहाँ पे ये डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हो जाएगी। अब पर्सनली मैं काउंसलिंग करता रहता हूँ ऐसे लोग, अरे भाई आप क्यों करते हो ये, ऐसी बात नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है लेट्स सॉर्ट आउट। यस, उसके बाद भी जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, आई कंसल्ट पुलिस। यस, भाई ऐसे मसला है, आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, तो वो चीजें होती है। लेकिन इट्स नॉट, ये सोल्यूशन नहीं है इसका। सोल्यूशन है कि आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो कि ये चीजें होगी नहीं, राइट, और इसमें और ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको गवर्नमेंट पे लागू नहीं होती है। यस, ब्लेम गेम नहीं चलेगा। हाँ, ब्लेम गेम नहीं चलेगी, गवर्नमेंट आपको वो पूरा नहीं, आपको भी एक कदम आगे चलना है। एग्जैक्टली, इट्स लाइक इन फॉरेन, तो वहां पे लोग और गवर्नमेंट इक्वल कंट्रीब्यूट करते सोसाइटी के लिए। बिल्कुल जरूरी भी है कि इक्वली हम कंट्रीब्यूट करें, नहीं तो क्या होता है कि सड़क से खराब लेकिन हम घर से थोड़ा सा मिट्टी निकाल कर उस गड्ढे को तो भर सकते हैं। देन मैग्नेमाइजेशन इज द प्रोसेस गवर्नमेंट वही तो प्रॉब्लम है। आप आए दिन देखते रहते होगे कि अरे ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, ये गली में 10 घर है, अगर 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए घर निकालेगा वो ड्रेन बना सकते हैं, लेकिन वो इतना सफर कराते हैं खुद को, 10-10 साल वेट करते हैं घरों को प्रॉब्लम, लेकिन नहीं करते हैं। लेकिन एज कंपेयर्ड, अगर मुझे अपने घर में कोई इनोवेशन करनी होगी, मैं लाखों में पैसा खर्च करूंगा। बिल्कुल, लाइक आई वोंट थिंक ट्वाइस, लेकिन गेट से बाहर में निकलूंगा तो वो सरकार की वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं दुआ करता हूँ, आई विश कि लोग ये जो कंसेप्ट है बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ सिटीजन, एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, लोग समझ पाएंगे। अच्छा इरफान, यू हैव बीन कोलैबोरेटिंग विद एसपी सोपोर या कंसर्न डिपार्टमेंट्स, थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहूंगा, लाइक हाउ दोज कोलैबोरेशंस वर्क और उनका रिजल्ट क्या रहा है आज तक? एक्चुअली लास्ट ईयर आई हैड कन्वर्सेशन विद मिस दिव्या ji, IPS. She is presently SP Sopor. At that time she was ASP Baramulla. Okay. So मैं उनके ऑफिस चला गया. She is very nice lady. तो मैंने बोला यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है बच्चों में, मतलब they don't have avenues कि उनको कैसे सिविल सर्विस में जाना चाहे, गवर्नमेंट जाना चाहे. So उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे बुलाओ. I will interact myself to these students. Yes. So there was an police library in Baramulla. So I gathered the students there, and बहुत ही busy schedule के बावजूद भी वो वहाँ पे आए, and they give the interaction one-to-one, and they interacted with all the students. That's how you contribute for your society. And not only that, she shared her personal phone number with these students. Wow. And last month I visited her, and she was very happy. I told her, ma'am, Sopor में करते हैं. And she was very happy. Yes, she was even in fact, 2 days before we had interacted with her, we had an interaction, and she's always on toes for these things. So जो यहाँ पे students है, जब हम students थे आज से 10 साल पहले, मैंने IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर को तो मतलब देखा भी नहीं था, मैंने टीवी पे भी नहीं देखा था। लेकिन आज ऐसे एवेन्यूज है आपके डिस्ट्रिक्ट में, इतने IAS ऑफिसर है, इतने IPS ऑफिसर, हेजिटेट मत करो,
उनके पास जाओ, सोशल मीडिया पर भी एक्सेस है, यू कैन आस्क एनीबॉडी एनीथिंग, राइट? उससे भी अगर उनके पास जाओ आप, सर आई एम वर्किंग फॉर इट, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट, जस्ट गिव मी टिप्स, और आई एम 100% श्योर वो आपको निराश नहीं करेंगे। बिल्कुल। दे वांटेड टू पीपल शुड कम एंड ब्रिंग सम चेंज इन द सोसाइटी। अच्छा इरफान, आने वाले वक्त की अगर हम बात करें, यू हैव बीन डूइंग ग्रेट एंड कुडोस टू यू फॉर दैट। थैंक यू। आने वाले वक्त की अगर हम बात करें तो हाउ एंड व्हाट प्लान्स यू हैव इन योर माइंड? कैसे देखते हैं आप हमारे यूटी को, हमारे कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को, एंड व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी? My plan is, as told you earlier, that first thing is our economy should be better. उसके लिए मेरा ये plan है, like we should have the better small scale industries. मैं एक fact आपको बताता हूँ, Kashmir is rich in apple production. Yes. Kashmiri people sell 1 kg of apple around 40-50 rupees. Yeah. 40-50 rupees. और जब उनको किसान जैम या कोई भी जैम घर में खरीदना होगा, Right. हाफ के जी वो 250 रुपए का खरीदे। कराते हैं, right. अगर आपके पास इतना रॉ मटेरियल है, तो आप घर में जैम बनाकर उसे बेच सकते हैं। हाँ, जस्ट गो ग्लोबल। आज वो हर्डल्स नहीं होनी चाहिए। मेरा प्लान ये है कि मैं तैयार करूं ऐसे फार्मर्स को जिनके पास बागात है, इनके लिए उनको बोलेंगे कि भाई आप इंडस्ट्री से आप एस्टैब्लिश करो, प्लान करो। वहां से नहीं, हम यहाँ से नॉट ओनली वी विल एक्सपोर्ट टू इंडिया, वी शुड एक्सपोर्ट टू एवरी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो उससे क्या हो जाएगा, उससे मतलब एम्प्लॉयमेंट बच जाएगी, so more money will come. Yes. This time situation ये है कि हमारा earned money go outside because most of the products are manufactured outside. Most of the, it's 99% of the products are manufactured outside. Outside, Right. and we are just consumers. We are not makers of that Right. product. At least if we have 20% of making manufacturing units, at least we can be in a better position, financially position. This is the one thing. And the second thing is, with it, unemployment will vanish itself. And the second thing is, जो laziness है. My plan is to give counseling to students of Kashmir. यूथ को काउंसलिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम इन्फ्लुएंशियल पीपल। किसी की मुझे जरूरत लेनी पड़े, मदद लेनी, मैं उनके पास जाऊंगा, इनको हम काउंसलिंग करेंगे, इनको हम तैयार करेंगे। गवर्नमेंट से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, भाई आप ऐसे कोर्सेज यहाँ पे लॉन्च कीजिए जिनकी जरूरत है आगे जाके। वी आर सिटिंग इन अ स्टूडियो, Right. So we have a videographer here, we had a sound technician here. Different departments. जो आपको जरूरत है कल को जाके, जो आपको रोजगार दे सकता है, वो चीजें प्रोवाइड। हाँ, वन थिंग आई एम नॉट अगेंस्ट कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो वर्स है, दैट्स नॉट अ वर्स, बट प्रॉब्लम ये है कि सही दिशा में नहीं चल रहा, प्रॉपर चैनलाइज नहीं हो। आप एमए इन हिस्ट्री करके निकले हो, इसलिए कि कहाँ पे मुझे टीचिंग का जॉब मिले तो मैं वो करूंगा, लेकिन एमए इन हिस्ट्री वाला प्रैक्टिकली में करेगा क्या यहाँ पे? उस जॉब की कोई मतलब यहाँ पे आपको सस्टेनेबिलिटी नहीं है। सो आप ऐसे कोर्सेज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करो जो कल को रोजगार देगी। सो गवर्नमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपके माध्यम से भी, बस ऐसे आप एजुकेशन सिस्टम बनाओ कि रोजगार में आसानी। जी जी जी। सो इरफान, जो आपको यूथ देख रहा है, फॉर रेफरेंस, फॉर एग्जांपल, इफ दे वांट टू कनेक्ट टू यू, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं? हाउ दे कैन बी अ पार्ट ऑफ योर सोशल एक्टिविज्म, और इफ दे आर इन डायर नीड, हाउ दे कैन कनेक्ट? Okay. I have my social media, they can connect me from that. I will share my mobile number with it, and anytime you can come my home. I am living in Stadium Colony, Baramulla. Anytime, anywhere you can contact him. You can contact phone या physically जाकर आप इनके घर को visit कर सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं। And if there is anything, आप रेडियो चैनल को contact करके and we'll get you through. और इरफान, what will be the concluding message for the rest of the masses जो आपको देख रहे हैं इस time, particularly youth, boys and girls? Okay, I will give one advice. Just spend your 3 hours on my advice. Rest of 21 hours is yours. Yes. Give 1 hour to your prayers. Okay. 1 hour your belief. Second hour, give it to your physical exercise. The first hour will make your soul like purified. Purified. Right. And the physical
activity for 1 hour. It will give your physical Cleanse your body. right. And the third 1 hour is important. Just give this 1 hour to that skill in which field you want to go. Bilkul. But it should be consistent. बिल्कुल It should be, for example, Consistency matters. yeah, I'm a medical representative. I should devote at least 1 hour to this knowledge. प्रोफेशन टू Yeah. नॉलेज टुगेदर अगर मैं 1 घंटा कंटिन्यूअसली अपने प्रोफेशन की नॉलेज को एक्योर करने के लिए करता हूँ, सर, आई विल बिकम इन 1 year आई विल बिकम टॉप इन दिस प्रोफेशन. बट देयर इज अ लिमिटेशन. आपको मोबाइल से ये नॉलेज एक्योर नहीं करनी है, नहीं किताबों से कर आपको किताबों से करनी है. राइट एग्जैक्टली क्योंकि आज हम कुछ भी करने हैं वी गूगल इट और गूगल पर दिखाई सभी चीजें सच नहीं होती. सच नहीं होती. इरफान, थैंक यू सो मच. इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू हियर. और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये कन्वर्सेशन आपने जरूर एंजॉय की होगी. दिस इज आरजे ज़्यूस. हम है टीम रेडियो चिनार एंड वी केयर फॉर यू.